अमीबा के बारे में पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। अमीबा क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेजर पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा क्या है के अंदर क्या हो रहा था, गॉल स्टोन्स होने की वजह से पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ गया, तो क्या होगा? तो लिवर का काम क्या होता है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ कार्निवोर एनिमल Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Plus Learning. So I have come again as a biology mentor for all of you to help you out in biology. So in lecture 1 that we have already covered, we have completed the topic nutrition. The first life process we have already completed in lecture 1. Those of you who haven't seen the first lecture, you can click on the link that is being provided to you on your screen. And continuation with that, we will be covering with the second lecture today, where the major topics that we'll be studying today in this lecture would be about nutrition in eukaryotic unicellular organisms, amoeba and paramecium. After that, nutrition in human beings, how the nutrition in human beings takes place and which mode of nutrition in human beings takes place. After this, the third topic of the lecture today would be about the human digestive system. So all these three topics we'll be covering in this session today. So sit tight and take out your pen and paper and start making notes whatever I'll be teaching today. So starting with the first topic, that is nutrition in eukaryotic organisms, that two unicellular eukaryotic organisms, amoeba and paramecium. So amoeba and paramecium कैसे हैं? ये दोनों एक unicellular organism है, single cell organisms, but they are not prokaryotes, they are eukaryotes. What is the difference between prokaryotes and eukaryotes? सबसे पहली चीज तो हमें यही पता होनी चाहिए, the base should be clear कि prokaryotes और eukaryotes में actual में difference क्या होता है. So अगर हम लोग prokaryotes की बात करें, talking about prokaryotes, तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो नाम से हम लोग मतलब समझेंगे. प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब इज प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मींस कैरी ऑन. कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? द न्यूक्लियस इज बेसिकली द प्रिमिटिव न्यूक्लियस. प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. वेल डेवलप्ड का क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि इसमें देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बेसिकली एब्सेंट. सो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स या फिर प्रोकैरियोट्स के केस में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, these prokaryotic organisms, they also do not consist of organelles. Which kind of organelles? Membrane bound organelles. There are two types of organelles in a cell, membrane bound organelle and non-membranous organelle. So they basically lack membrane bound organelle. And the example of prokaryotic organisms could be the bacteria. Bacteria such as E. coli, which is abundantly present in the environment. This is a kind of bacteria. So E. coli or the bacteria, which are the examples of prokaryotes, they lack proper nucleus. The nucleus is not well developed in them, and the chromosomes or the DNA material, the nucleic acid material, which is usually present in the nucleus, it is distributed onto the cytoplasm of the cell. Secondly, they lack the membrane bound organelles. So इनमें mitochondria नहीं होगा, इनमें ribosomes होंगे. Ribosomes are basically what? It is a non-membranous organelle. So ribosomes present रहेंगे, लेकिन जो अदर ऑर्गेनलीज है सच एज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप नहीं होती है इनकी. अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्जी बॉडीज हो गया. देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनलीज व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सेल. ऑल दोस ऑर्गेनलीज वुड बी एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. कमिंग टू द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे. यू मतलब इज ट्रू एंड कैरियोट्स मींस सेम, कैरी ऑन व्हिच मींस न्यूक्लियस. राइट? सो इनके केस में कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है.
True nucleus present means the nucleus is well developed. Well developed nucleus is present inside them and having the nuclear membrane. Apart from that, they also consist of membrane bound organelle. So membrane bound organelle इनमें present रहते हैं. Membrane bound organelle से क्या समझ में आता है? कौन से membrane bound organelle की बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे ATP बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स इनमें रहते हैं, लाइसोसोम्स इनमें रहते हैं, देन सेंट्रियोल इनमें प्रेजेंट रहता है सेल डिवीजन के लिए. So all these major membrane bound organelles are present in case of eukaryotic organisms, but they are not present in case of prokaryotes. So this is the major difference between prokaryotes and eukaryotes. Here the example would be many examples are there. Eukaryotes, majorly there are two types of eukaryotes. यूनिसेलर में हमारे जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में पढ़ने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीसेलर यूकैरियोटिक organisms. So multicellular eukaryotic organisms are also present here. So डिफरेंस हमें पता चल गया, बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए, हमें पता चल गया क्या डिफरेंस है बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में. अब हम लोग आते हैं किसमें, न्यूट्रिशन इन these eukaryotic unicellular organisms. Firstly we will be studying about nutrition in amoeba. अब अमीबा के केस में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? It is exactly which is the mode of nutrition in case of humans. Humans जैसे हम लोग हैं, हमारे केस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हम पूरा का पूरा खाना, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसमें होता क्या है? द एंटायर फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी एंड अंदर ही बॉडी के अंदर क्या होता है? डाइजेशन एज वेल एज अब्जॉर्प्शन विद इन द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस. सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा कैसे आकर करता है? तो अमीबा के बारे में पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा. अमीबा क्या है? एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. किस टाइप का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. हैबिटेट इसका क्या होता है? कहां मेजरली रहता है? अमीबा हमारा पानी में रहता है. इट इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, अमीबा को कौन हेल्प करता है उसका खाना के पास पहुंचाने में? सो अमीबा हैव स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन्स नोन एज स्यूडोपोडिया. दीज आर बेसिकली द फॉल्स फीट थ्रू व्हिच the amoeba it basically can engulf the food inside. ये सबसे पहले क्या करेगा? ये जो सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया एक्चुअल में है क्या? it acts as a locomotory organ. मतलब ये मूवमेंट में हेल्प करता है. एक तो अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कैप्चर करना हो किसी फूड आइटम को, जो अमीबा का खाना है उसको अगर कैप्चर करना है, तो वो भी वो किसके हेल्प से करता है? सूडोपोडिया की हेल्प से करता है. तो सूडोपोडिया is the major organ that we'll be studying here. How the pseudopodia helps in case of food capturing in case of amoeba. अब दूसरी चीज about pseudopodia is that it is majorly the extension of the cell membrane. जो अमीबा का सेल है, सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, उसी सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या है? सूडोपोडिया है. तो सूडोपोडिया का काम क्या होता है? ये क्या क्या चीजें करने वाला है? सूडोपोडिया बेसिकली टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के. अमीबा की ही सेल के मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होंगे जो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किसमें? फूड को कैप्चर करने में. अब होता क्या है? जो सूडोपोडिया है वो फूड को कैप्चर करके उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचा देता है विद इन द ऑर्गेनिज्म, विद इन द अमीबा. दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज नोन एज फूड वैक्यूल. उसको क्या बोला जाता है? फूड वैक्यूल. तो क्या किया पहले वाले में? जब हम लोग देख रहे हैं, सिंस अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो क्या करेगा? सारा का सारा क्या करेगा? खाना इनगल्फ कर लेगा विद इन द बॉडी. ठीक है, इंजेक्शन करेगा खाने का. इंजेक्शन कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स फीट व्हिच इज नोन एज सूडोपोडिया. तो सूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करेगा? अपने खाने को बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेगा. This particular process in which with the help of pseudopodia amoeba is able to engulf the food inside, this process is known as endocytosis. और एंडोसाइटोसिस के अलावा इसको फैगोसाइटोसिस भी बोला जाता है. तो एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से ये क्या करेगा? फूड को इनगल्फ करेगा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. एंड ये खाना जो सूडोपोडिया की हेल्प से अंदर आया है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में चला जाता है विद इन द अमीबा, दैट इज फूड वैक्यूल्स. अब ये जो फूड वैक्यूल है वहां पे खाना पड़ा हुआ है. अब होगा क्या? जो अमीबा की सेल सरफेस होती है उसमें कुछ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस आते हैं इनटू दिस लोकेशन, दैट इज द फूड वैक्यूल, और वहां पे जो खाना प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे? डाइजेस्ट करेंगे विद इन द बॉडी इटसेल्फ. तो फूड का डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव
juices that is being released or the chemicals that is being released by the amoeba. So food का यहाँ पे digestion हो गया. Digestion होने के बाद food का absorption भी वही होता है. Digestion के बाद the third step would be the absorption. Within the body itself, the absorption of the food is also taking place. Once the food is being absorbed, फूड एब्जॉर्ब करने के बाद जो खाने से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको जो अमीबा है वो यूटिलाइज कर लेगा फॉर इट्स डे टू डे एक्टिविटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द न्यूट्रिएंट्स इट विल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डिफरेंट लाइक पार्ट्स ऑफ द अमीबा. लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका कोई काम नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड जो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, उसको अमीबा क्या करेगा, अपने सेल सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देगा. सो फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड अकर कर रहा है. किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड विद इन द सरफेस ऑफ द सेल सरफेस ऑफ द अमीबा. देन कम्स द अब्जॉर्प्शन. जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसी का अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ही अकर कर रहा है डाइजेस्टेड फूड का विद इन द साइटोप्लाज्म. तो होता क्या है, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, तो साइटोप्लाज्म में सारा खाना अब्जॉर्ब हो जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है, जो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसको अमीबा का जो सेल होता है इट रिमूव्स इट आउट फ्रॉम द सेल सरफेस. सो अब्जॉर्प्शन के बाद द थर्ड स्टेप वुड बी द एसिमिलेशन एंड देन लास्टली द इजेक्शन टेक्स प्लेस. एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, जो भी खाना साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हुआ है दैट खाना वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी. दिस इज नोन एज एसिमिलेशन. सो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. अब अमीबा का ही दूसरा कजन है हमारा कौन, पैरामीशियम. सो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख पा रहा होगा. पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बिल्कुल जूते जैसा दिख रहा है, शू शेप स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का. एंड most of the like mode of nutrition in amoeba and paramecium is mostly same, but little bit of difference is there which we need to understand. थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है. सबसे पहले तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ही अलग है, ठीक है, शू शेप का स्ट्रक्चर है. लेकिन ये भी हम लोग किसके अंदर कंसीडर करते हैं, पैरामीशियम को भी विल बी कंसीडर अंडर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट इज आल्सो अ यूनिसेलुलर. पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट. इसका हैबिटेट भी सिमिलर टू अमीबा. इसका हैबिटेट भी क्या है, इट इज आल्सो एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम. ये अपना खाना थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेता है विद इन द बॉडी. मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है पैरामीशियम में भी, जस्ट लाइक इन अमीबा. मतलब पूरा का पूरा खाना अंदर जाएगा, इंजेक्शन होगा खाने का, अंदर ही डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा एंड द वेस्ट मटेरियल वुड बी रिमूव्ड आउट. सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है इसमें, लेकिन इसका खाना लेने का तरीका, उसको डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब करने का तरीका अलग है. कैसे अलग है, अमीबा के केस में हम लोग देख रहे थे कि अमीबा का कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है. अमीबा का खाना अगर यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ से भी वो क्या कर सकता है, खाना ले सकता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. आगे है कहीं पे तो वहां से भी वो खाना अंदर ले जाता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. तो कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं से भी खाना वो अंदर ले सकता है विद द हेल्प ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन दैट इज सूडोपोडिया. जबकि पैरामीशियम जो है, इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीलिया. तो यहाँ पे ऐसे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, दिस इज बेसिकली व्हाट, चेंज द कलर, दिस इज बेसिकली सीलिया. तो सीलिया की हेल्प से क्या होता है, खाना कहीं पर भी पड़ा हो, इस खाने को सीलिया एक सिंक्रोनाइज्ड मोशन में क्या करती है, मूव करती है. सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, सिंक्रोनाइज्ड मोशन में मूव करके खाने को क्या करेगी, पीछे से खाने को पुश करेगी. पुश कहां पे करेगी, द फूड इज बीइंग पुश्ड विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सीलिया भी कैसे हेल्प मूव कर रही है, सिंक्रोनाइज्ड मोशन में. सीलिया सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस खाने को यहां से पुश करके लेके जाते हैं इनटू एन ओपनिंग. यहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है which basically acts like a mouth for paramecium. तो यहाँ पे ये ओपनिंग को क्या बोला जाता है, दिस पर्टिकुलर ओपनिंग जिसके थ्रू खाना अंदर जाएगा, दिस ओपनिंग इज नोन एज ओरल ग्रूव. द ओपनिंग इज नोन एज व्हाट, ओरल ग्रूव. ओरल ग्रूव के थ्रू खाना अंदर जाता है. और ये जो खाना है, सिंस इट इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, खाना पानी के साथ ही डिसॉल्व रहता है, तो पानी के साथ ही खाना अंदर जाएगा थ्रू द ओपनिंग नोन एज ओरल ग्रूव. ओरल ग्रूव के थ्रू, गलट के थ्रू ये खाना कहाँ पे चला जाएगा, इनटू द फूड वैक्यूल. ये क्या है, ये फूड वैक्यूल है. फूड वैक्यूल के अंदर खाना जब जाएगा तो क्या होगा, फूड वैक्यूल के अंदर जब खाना जाता है तो उस खाने का डाइजेशन होता है विद इन द फूड वैक्यूल. सिमिलर प्रोसेस लाइक अमीबा, केमिकल्स का रिलीज होगा. केमिकल सब्सटेंसेस क्या करेंगी, कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को कन्वर्ट करेंगी इनटू द सिंपलर फॉर्म, और अंदर डाइजेशन होने के बाद द फूड इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड विद इन द साइटोप्लाज्म. तो खाने को फिर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर. उस खाने का फिर
एसिमिलेशन होता है, मतलब उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। कहां से थ्रो आउट करेंगे? यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है जो एनस की तरह काम करती है। तो एक ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, सेकंड ओपनिंग, व्हिच एक्ट्स लाइक एनस। इस एनस के थ्रू ही अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग रिमूव्ड आउट। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन पैरामीशियम कि कैसे खाना जा रहा है, सबसे पहले तो क्या हुआ है, द सेल हैज अ डेफिनेट शेप लाइक स्लिपर और शूज की तरह डेफिनेट शेप होता है। अमीबा से कंप्लीटली डिफरेंट है, अमीबा में कोई फिक्स शेप नहीं होता है। फिर क्या है, फूड इज बीइंग इंजेस्टेड बाय सीलिया थ्रू ओरल ग्रूव इनटू द गलेट। तो सीलिया की हेल्प से, सीलिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन जो मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है और कैप्चरिंग ऑफ द फूड में भी हेल्प कर रहा है। फूड को पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द ओपनिंग व्हिच इज नोन एज द ओरल ग्रूव इनटू द गलेट। गलेट के थ्रू मूव करेगा और फूड कहां पे डाइजेस्ट होगा? इनटू द फूड वैक्यूल। किसके थ्रू? बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है? साइटोप्लाज्म। जो पैरामीशियम है उसके साइटोप्लाज्म में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे और फूड को डाइजेस्ट करेंगे विद इन द फूड वैक्यूल। देन द डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो खाना है जिसको अभी क्या किया गया है, अभी डाइजेस्ट किया गया है विद इन द फूड वैक्यूल, इट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से। फिर क्या होगा? द अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग थ्रोन आउट। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, सिमिलरली लाइक इन केस ऑफ अमीबा, इसमें तो सेल सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही खाना बाहर चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग एनस के थ्रू क्या होता है, खाना बाहर फेंका जाता है। अब पैरामीशियम में और भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये फूल जैसा कुछ दिख रहा होगा, द फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन केस ऑफ अमीबा, सॉरी पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, एक ही बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा होगा और उसी के नीचे एक छोटा सा न्यूक्लियस दिख रहा होगा। दिस पर्टिकुलर बिग न्यूक्लियस इज नोन एज मैक्रो न्यूक्लियस। साइज बड़ा है तो नाम भी क्या पड़ गया इसका, मैक्रो न्यूक्लियस। एंड जो उसके ही नीचे, ठीक नीचे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज द माइक्रो न्यूक्लियस। काम क्या है इनका? दो न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट है? एक ही तो न्यूक्लियस यूजुअली ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनके केस में क्या प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है? जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर करती है विद इन द पैरामीशियम, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मैक्रो न्यूक्लियस। व्हाइल माइक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है? ये हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये हमारा कवर अप हो गया न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अमीबा एंड पैरामीशियम। नाउ विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे अकर करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसके स्टेप्स क्या क्या है, किस तरह से फूड को तोड़ा जा रहा है या फिर खाने को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से यूटिलाइज किया जा रहा है विद इन द ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो स्टेप्स यहाँ पे जो इन्वॉल्व रहेंगे, पहला स्टेप वुड बी द इंजेशन। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है? Ingestion is basically taking the entire food within the body. So क्या करेंगे यहाँ पे? खाने को अंदर लेंगे, taking the food. तो खाने को हमने पूरा का पूरा अंदर ले लिया ingestion के थ्रू। Second would be after the food is being taken inside the body, the food would be digested. Food के digestion में क्या करेंगे? Breakdown of the food. यहाँ पे क्या करेंगे? Breakdown of food, majorly the complex food into simpler substances. So जो complex food item है उसको simple substance में convert किया जाएगा, उसका breakdown करके. This would be coming under the second step, that is the digestion. After digestion, what will happen? The complex food which is being digested, broken down into simpler form, it would be absorbed. Absorption कैसे होगा? अमीबा और पैरामीशियम में तो हमने क्या देखा था? अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो खाना तोड़ा गया था फूड वैक्यूल के अंदर, उसको भेज दिया गया था सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनटू द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होगा? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या होगा? द न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग अब्सॉर्ब्ड, nutrients are being absorbed with the help of blood. So blood की हेल्प से क्या करेंगे? जो भी फूड आइटम हमने डाइजेस्ट किया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फूड आइटम कन्वर्ट हुआ है, इसको हम लोग अब्सॉर्ब करेंगे विद इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ
ब्लड के अंदर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी। ब्लड के अंदर जब सारा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट कर देगा टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो सेल्स में चली जाएंगी, क्या खाना किसके पास चला गया, सेल्स के पास चला जाएगा, और वहां पे जो सेल होगा वो खाने को क्या करेगा, खाने को यूटिलाइज करेगा टू जनरेट एटीपी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देन क्या होगा, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन की ही बात कर रही हूं मैं। आफ्टर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इज बीइंग सेंट टू द ब्लड में अब्जॉर्प्शन हो रहा है खाने का। ब्लड क्या करेगा, इस अब्जॉर्ब फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो खाना होगा वो सेल्स के पास जाएगा, और सेल क्या करेगा, द फूड दैट इज बीइंग अब्जॉर्ब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। द अब्जॉर्ब फूड, here the absorbed food is being utilized to generate energy, energy भी किस फॉर्म में जनरेट हो रही है, energy is being generated in the form of ATP के फॉर्म में energy is being generated। coming to the last process is the egestion में क्या होता है, the undigested and unabsorbed food is being removed out, removal of the undigested and unabsorbed food। so body से जो भी undigested और unabsorbed food है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब like most of the students they get confused between the egestion and excretion, so let me clear your doubt first of all। egestion की जो प्रोसेस है is not equal to एक्सक्रीशन के इक्वल नहीं है, दोनों को सेम नहीं लेना है हमको। एक्सक्रीशन अलग है और इजेशन अलग है। इजेशन में बेसिकली क्या होता है, इजेशन में जो भी अनअब्सॉर्ब्ड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज बीइंग रिमूव्ड आउट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में फूड इज बीइंग removed from the body। okay, which type of food, basically undigested। while in case of excretion के केस में क्या होता है, excretion में the metabolic waste is being removed, metabolic waste is removed from the body। तो यहाँ पे हम लोग किस टाइप का वेस्ट रिमूव कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द बॉडी, और किस फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में। ह्यूमंस के केस में ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, ह्यूमंस के केस में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया के फॉर्म में हम लोग इसको रिलीज आउट करते हैं। so that is basically excretion and this is egestion। so there is a major difference between both of these are not similar to each other। इतना समझने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कौन से, हमारे ह्यूमन सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, कि ह्यूमंस के अंदर हमने स्टेप्स तो पढ़ लिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा होलोजोइक है, कंप्लीटली द फूड इज बीइंग इंजेस्टेड इनसाइड, उसका अंदर ही डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और उसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग रिमूव्ड आउट। ये तो स्टेप्स हो गए, लेकिन ये स्टेप्स जो हो रहे हैं वो किसी मेजर सिस्टम में हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोला जाता है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर अप करना है। तो पार्ट्स के बारे में हम लोग जरा देख लें। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले पार्ट को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कनाल। पहला पार्ट इज एलिमेंट्री कनाल। ये एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है, हॉलो होता है, अंदर से कैसा है, ये हॉलो है, खाली एकदम। और मेजरली जो फूड होता है वो डाइजेशन के लिए या अब्जॉर्प्शन के लिए इसी एलिमेंट्री कनाल के थ्रू मूव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेजर पार्ट है, एक एलिमेंट्री कनाल है, दूसरा क्या है, दूसरा वुड बी द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इन दोनों में से जो खाना मेजरली मूव करता है वो किसके थ्रू मूव करता है, एलिमेंट्री कनाल के थ्रू मूव करता है। और एलिमेंट्री कनाल किस टाइप का कनाल है, एकदम हॉलो है, अंदर से खाली है, खोखला है, और इसकी जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कनाल की, इट इज अराउंड 7 to 9 मीटर्स। 7 to 9 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर से बिल्कुल हॉलो होता है, और खाना जो मूव कर रहा होता है वो इसी एलिमेंट्री कनाल के थ्रू मूव करता है। अब होता कैसे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इसकी एक ओपनिंग होगी, मतलब ये स्टार्ट हो रहा होगा कहीं से तो एलिमेंट्री कनाल की शुरुआत हो रही होगी। दिस वुड बी द ओपनिंग, जिसको क्या बोला जाता है, माउथ बोला जाता है। खाना इसी ओपनिंग के थ्रू अंदर जाता है, एलिमेंट्री कनाल के थ्रू। फिर यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल में जैसे ही खाना यहाँ से अंदर जा रहा है
खाने को हम लोग थोड़ा कलर अलग कर लेते हैं ताकि लगे हमारा खाना है। दिस इज खाना, दिस इज द फूड, ठीक है। तो फूड को इस ओपनिंग के थ्रू, माउथ के थ्रू अंदर लिया जाता है। जब माउथ के थ्रू फूड अंदर जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें अकर करती है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस अकर करेंगे जिसके थ्रू खाने को डाइजेस्ट किया जाएगा और उसको अब्सॉर्ब किया जाएगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू दिस सेकंड ओपनिंग विच इज नोन एज एनस। एनस के थ्रू क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड वुड बी रिमूव्ड आउट। सो शुरू कहां से हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से, और एंड कहां पे हो रहा है, एनस से एंड हो रहा है। खाना कहां से जाएगा, माउथ के थ्रू अंदर जाएगा। अंदर एलिमेंट्री कैनाल की बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करेंगे इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो दूसरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज द एनस, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं इनके थ्रू खाना कभी मूव नहीं करेगा, बट दे आर हेल्पिंग द एलिमेंट्री कैनाल टू डाइजेस्ट द फूड, इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ा हुआ है, एसोसिएटेड। सो बेसिकली दे आर हेल्पिंग ग्लैंड्स। सो इनमें क्या क्या आ जाएंगी, हमारी लिवर आ जाएगा, लिवर के अलावा क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज। So pancreas and liver, these are the major organs which help in the digestion of food indirectly. इनके थ्रू खाना मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे secretions प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू खाना जो एलिमेंट्री कैनाल में खाना जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। सो इस चीज को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खाना कैसे मूव कर रहा है, विद इन द एलिमेंट्री कैनाल, हाउ द फूड इज मूविंग। तो खाना सबसे पहले कहां जाएगा, फूड जाएगा माउथ के थ्रू, सबसे पहले माउथ में जाएगा। माउथ के बाद ये खाना कहां जाने वाला है, माउथ के बाद इट विल गो इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ओइसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ओइसोफेगस पे जाएगा ये खाना, ओइसोफेगस दैट इज द फूड पाइप। इस ओइसोफेगस पे जाने के बाद खाना कहां जाएगा, द फूड विल बी गोइंग टू द J-shaped organ, a wide J-shaped organ present in the alimentary canal which is known as stomach. ये खाना जाएगा कहां पे, स्टमक में जाएगा, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इट इज अ J-shaped organ, J-shaped जैसा दिखता है। इसके बाद खाना कहां जाएगा, स्टमक में खाना डाइजेस्ट होने के बाद फर्दर द फूड विल बी मूविंग थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल इनटू अनदर ऑर्गन व्हिच इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खाना कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लास्टली दिस फूड विल मूव टू द एनस। ठीक है, एनस से भी पहले देयर इज अनदर पार्ट प्रेजेंट दैट इज द रेक्टम। रेक्टम में जाएगा जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड कुछ समय के लिए क्या होता है, स्टोर किया जाता है। रेक्टम इज दैट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड थोड़े समय के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। रेक्टम के बाद ये खाना कहां जाएगा, एनस के थ्रू द फूड वुड बी रिलीज्ड आउट। सो दिस इज द एंटायर व्हाट, जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, किस तरह से मूवमेंट हो रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में, खाने का किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, उसका मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो फ्लो चार्ट जब हम देख रहे हैं उसमें सबसे पहला जो ओपनिंग आती है जिसके थ्रू खाना इंजेशन होता है खाने का, दैट इज द माउथ। तो पहले वाले पे हम लोग आ जाते हैं जहां पे खाने का क्या हो रहा है, इंजेशन हो रहा है। माउथ में क्या होता है, इंजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इंजेशन ऑफ फूड कहां पे हो रहा है, विद इन द माउथ। अब माउथ में क्या होता है, तीन मेजर पार्ट्स होते हैं माउथ के। सबसे पहले तो टीथ होगा, दूसरा क्या होगा, टीथ के बाद there will be tongue present which will be helping in what, in swallowing of the food, the food that is being chewed or masticated by the teeth, उसको swallow करने में कौन हेल्प करेगा, टंग हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये माउथ के अंदर हो रहा है। तो खाना हमारा पहली ओपनिंग में गया, दैट इज द माउथ। माउथ में पूरा खाना इंजेस्ट करेंगे। माउथ के तीन मेजर पार्ट है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। तीनों हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो माउथ में भी खाना डाइजेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि खाना सिर्फ पेट में ही डाइजेस्ट हो रहा है। खाना जो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स और बिगिंस फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, हैविंग थ्री मेजर पार्ट्स व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। माउथ के बाद ये खाना कहां पे जाता है, खाना एक ट्यूब के अंदर जाता है जिसको फूड पाइप बोला जाता है। बिल्कुल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो फूड पाइप है
दैट इज द ओइसोफेगस। इसके अंदर क्या होती है, ओइसोफेगस के वॉल जो होती है उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट रहती है। जो ओइसोफेगस की वॉल है उसकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। जब ओइसोफेगस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है उसके कारण जो खाना होता है वो माउथ से जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो अंदर पुश होता है फ्रॉम ओइसोफेगस टू द स्टमक। सो इसका काम क्या है, स्टमक सॉरी ओइसोफेगस या फूड पाइप का काम क्या है, टू पुश द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो माउथ से स्टमक तक खाना पहुंचाने का काम किसका है, ओइसोफेगस का है। कैसे करता है ओइसोफेगस ये काम, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, contraction and relaxation of the wall of oesophagus। ठीक है, ओइसोफेगस की जो वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा जिसके कारण खाना आगे के साइड पुश होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किस टाइप का मूवमेंट है ये, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो खाने को आगे को पुश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओइसोफेगस का काम हो गया। ओइसोफेगस ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसने क्या किया, खाने को पुश किया, जो भी माउथ में खाना डाइजेस्ट हुआ था उसको लेके गया टू द स्टमक। सो नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्टमक व्हिच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। और स्टमक के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। स्टमक की जो वॉल है, स्टमक की वॉल्स में क्या प्रेजेंट रहती है, जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, इस तरह से जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टमक का। और स्टमक की जो वॉल होती है उसकी वॉल में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्टमक की वॉल में इस तरह से सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ये कौन सी सेल्स है, ये बेसिकली दीस सेल्स कंसिस्ट ऑफ सर्टेन सिक्रीटरी सेल्स होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है वॉल्स में। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स का काम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, सिंस स्टमक की में जो सेल्स हैं वो कुछ सिक्रीशन कर रही है और उनको ग्लैंड्स बोला जाता है। तो स्टमक के अंदर जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोला जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसके सिक्रीशन में हेल्प करेगी, हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होगा, गैस्ट्रिक जूस हेल्प करेगा फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड में। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, माउथ से खाना ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक पे आया। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, स्टमक के अंदर खाने का क्या होता है, फर्दर डाइजेशन होता है। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल्स होंगी स्टमक की, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, जिसके कारण जो खाना अंदर होता है स्टमक के अंदर उसकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग किसके साथ होगी, गैस्ट्रिक जूस के साथ होगी। ये गैस्ट्रिक जूस कौन रिलीज करेगा, स्टमक की इनर वॉल के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करेंगे। गैस्ट्रिक जूस हमारी कौन कौन सी होती है स्टमक के अंदर, एक तो होती है पेप्सिन, दूसरी इज HCl एंड थर्ड वन इज, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, एंड द लास्ट वन वुड बी द म्यूकस। These are the three secretions which are being synthesized or secreted by the gastric glands, जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करेगी। और गैस्ट्रिक जूस में तीन मेजर सिक्रीशंस आ जाते हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन, पी से प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। लेकिन पेप्सिन को प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, स्टमक पे एसिडिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोवाइड करता है। तो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक इज, पीएच कैसा होगा, बहुत ही लो पीएच होगा। HCl की वजह से जो स्टमक का पीएच होता है वो कितना होता है हमारा, 1.3 टू अराउंड लाइक 3.5 होता है। So 1.3 to around 3.5 pH रहेगा। It is a very low pH, acidic pH present within the stomach। और ये pH create कौन करता है, HCl। ठीक है, HCl apart from like activating pepsin so that pepsin gets activated and it can digest the protein, इसके अलावा HCl का क्या काम है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के अलावा क्या काम है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द बैक्टीरियाज और द पैथोजेंस व्हिच आर कमिंग अलोंग विद द फूड इनसाइड द स्टमक। तो खाने के साथ साथ कभी कभी हम लोग गंदा खाना खा लेते हैं और उस गंदे खाने में कभी कभी बैक्टीरियाज होती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब वो खाने के साथ स्टमक में पहुंचते हैं तो HCl उनको भी रिमूव कर देता है, किल कर देता है। देन कम्स म्यूकस। अब ये म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस बेसिकली एक सिक्रीशन है जो क्या होता है, जो इनर वॉल होती है किसकी, स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस बेसिकली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इनर वॉल ऑफ द स्टमक।
स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि एसिड रिलीज हो रहा है, HCl इज बीइंग रिलीज्ड विद इन द स्टमक। तो स्टमक के जो सेल्स हैं, इनर वॉल की जो सेल्स हैं, वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए म्यूकस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज अबाउट द स्टमक। तो स्टमक में क्या हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, HCl इज बीइंग secreted and the environment within the stomach is very acidic, and there is another gastric juice which is being produced, that is the mucus, which helps in protection of the inner wall of the stomach. इतना होने के बाद next would be the small intestine. अब क्या होगा? जो खाना फर्दर डाइजेस्ट हुआ है, माउथ में सबसे पहले खाने का डाइजेशन हुआ, वहां से स्टार्टिंग हुई, खाना गया ओसोफेगस के थ्रू टू द स्टमक, स्टमक में फर्दर डाइजेशन हुई खाने की। अब ये जो एसिडिक फूड है, जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्टेड एसिडिक फूड, इट वुड बी सेंट टू विच प्लेस? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको भेज दिया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाएगा खाना, पूरा ये जो डाइजेस्टेड फूड है स्टमक के थ्रू, एसिडिक होता है फूड इस समय पे, क्योंकि स्टमक में एनवायरनमेंट कैसा था? एसिडिक था। लेकिन हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन होना चाहिए। वो एसिडिक फूड को नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन होना चाहिए। तो पहले फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, बेसिक में कन्वर्ट किया जाता है फूड को। जो एसिडिक फूड, डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से निकल रहा है, उसको पहले बेसिक फूड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या होंगी? अभी हमने क्या बोला था यहाँ पे, जब हम लोग पढ़ रहे थे टू मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब यहाँ पे ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स काम में आएंगे। कैसे काम में आएंगे? खाना स्टमक से कहाँ पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। इतना सारा खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प की जरूरत है खाने को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो उसकी जो हेल्प है वो कौन करने वाले हैं? दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दे डायरेक्टली डू नॉट डाइजेस्ट द फूड, दे जस्ट प्रोड्यूसेस सर्टेन सिक्रीशंस, जो कहाँ पे जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भेजेंगे वो सिक्रीशंस, अपने जूसेस भेजेंगे, लिवर अपना जूस भेजेगा, पैनक्रियाज अपने जूसेस को भेजेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे क्या होगा? डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होगा किसका? खाने का। तो ये क्या करते हैं? लिवर का क्या काम है? लिवर किस तरह से हेल्प कर रहा है? लिवर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। लिवर किसका प्रोडक्शन करता है? लिवर बेसिकली सिंथेसाइज बाइल जूसेस। सो लिवर हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस जो बन रहा है वो कहां से बन रहा है? वो लिवर में बन रहा है, ठीक है। और ये जो बाइल जूस है, ये है क्या? बाइल जूस का काम क्या है? ये क्यों प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस? इससे कैसे खाने को डाइजेशन में हेल्प मिलेगी? तो बाइल जूस इज बेसिकली व्हाट? इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसमें हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब व्हाट इज दिस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? दैट टू फैट, मतलब फैट को कुछ तो किया जा रहा है, उसका डाइजेशन किया जा रहा है, पर कौन से प्रोसेस के थ्रू? इमल्सिफिकेशन। क्या होता है इमल्सिफिकेशन? तो होता क्या है, जब खाना हम लोग खाते हैं तो जो फैट होता है वो बेसिकली लार्ज ऐसे ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स की तरह फैट्स होते हैं। तो इस फैट को क्या किया जाता है? इस फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। इतने बड़े फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सॉरी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो अब्जॉर्प्शन अगर इसका करना है तो इसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लार्ज, दिस इज द लार्ज फैट ग्लोब्यूल which is being converted or broken down into smaller droplets, ठीक है। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है? इमल्सिफिकेशन के थ्रू हो रहा है, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस में बेसिकली क्या प्रेजेंट रहते हैं? बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, और यही सॉल्ट्स किस में हेल्प करते हैं? बड़े जो फैट के ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है इनको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं इनटू द स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ like converting the fat globules into smaller droplets is known as emulsification. Emulsification किसका काम है? बाइल जूस का काम है। बाइल जूस के अंदर भी बाइल सॉल्ट्स बेसिकली इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो लिवर यहाँ पे इस तरह से हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन ऑफ फूड में। तो ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स रिलीज कर देगा और बाइल जूस को रिलीज कर देगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे क्या हो जाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल टेक प्लेस, राइट। अब ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस बन तो रहा है लिवर में, लेकिन बाइल जूस को स्टोर करने के लिए अलग सी एक जगह होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां पे बाइल जूस को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज प्लेस ऑफ बाइल जूस इज व्हाट? बाइल जूस कहां पे स्टोर की जा रही है? दिस बाइल जूस स्टोर्ड विद इन अनदर organ present within the digestive system that is known as पित्त की थैली, जिसको बोला जाता है। पित्त की थैली इज व्हाट? गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको? गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर के अंदर द बाइल जूस इज बीइंग स्टोर्ड विद इन द गॉल ब्लैडर। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि
जो पित्त की थैली है उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि पित्त की थैली के अंदर स्टोन बन गए, पत्थर हो गया, पथरी हो गई है बोलते। पथरी कहाँ पे हो गई है? पित्त की थैली में। पित्त की थैली क्या है? गॉल ब्लैडर है, उसके अंदर पथरी हो गई, मतलब स्टोन्स बन गए। अब एक्चुअल में क्या हो, पत्थर इकट्ठा हो रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है, पत्थर तो नहीं इकट्ठा हो रहा है। जो गॉल स्टोन्स बोलते हैं वो एक्चुअल में है क्या? गॉल स्टोन्स में होता क्या है? गॉल स्टोन्स में बेसिकली जो बाइल जूस जो बन रहा है लिवर में वो स्टोर नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बाइल जूस है उसको वो इजीली, जो बाइल जूस है उसका मेजर काम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करना? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। तो वो बाइल जूस अपना काम भी नहीं कर पा रहा है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है लार्ज अमाउंट में। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस इज एक्यूमुलेटेड, ठीक है। और ये जो बाइल जूस है ये किसका बना हुआ है? बाइल जूस इज मेजरली मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। किसका बना हुआ है? कोलेस्टेरॉल, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। और क्या किसका बना रहता है? मेजरली कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बिलीरुबिन प्रेजेंट रहता है, बिलीरुबिन, ठीक है। इन दोनों केमिकल्स का बना रहता है क्या? बाइल जूस। तो बाइल जूस जब लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है गॉल ब्लैडर में, और वो गॉल ब्लैडर उसको, जो पहले का बाइल जूस है उसको भेज नहीं पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज्यादा अमाउंट में बाइल जूस इकट्ठा होता जा रहा है। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस इकट्ठा हो रहा है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज हो जाता है, गेट्स क्रिस्टलाइज्ड। क्या हो जाएगा? क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल के। और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है? एक लिपिड मॉलिक्यूल है, डेरिवेटिव ऑफ लिपिड इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो गेट्स क्रिस्टलाइज। अगर ये क्रिस्टलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा? स्टोन्स का प्रोडक्शन हो जाता है। स्टोन्स आर प्रोड्यूस, जिसको क्या बोला जाता है? गॉल स्टोन्स बोलते हैं। और इसी को क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग? रिमूव करते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली कि लाइक बाइल जूस कहाँ पे स्टोर किया जाता है, बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर और गॉल ब्लैडर, ऐसा तो इजी पेपर हो जाएगा। तुम्हारे में क्वेश्चंस इस हिसाब से होंगे जहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा। पूछेंगे तुमसे कि अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा था, गॉल स्टोन्स होने की वजह से पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ गया, तो क्या होगा? तो क्या प्रॉब्लम अकर करेगी उस पर्टिकुलर पेशेंट पे अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया? तो क्या लिख के आएंगे हम लोग? गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ बाइल सॉल्ट्स और बाइल जूस। तो बाइल जूस का वो स्टोरेज करता है। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो बाइल जूस का स्टोरेज नहीं हो पाएगा, जहां उसको पहुंचना चाहिए बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द डाइजेशन और द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो भी नहीं हो पाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर करेंगी या बॉडी में क्या चेंज अकर आएगा? सबसे पहले गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? टू स्टोर द बाइल जूस। तो बाइल जूस स्टोर नहीं हो पाएगा। बाइल जूस स्टोर नहीं हो पाएगा तो जहां पे बाइल जूस को एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंचना चाहिए था फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां नहीं पहुंच पाएगा। और क्या नहीं हो पाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाएगा। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया? तो लिवर का काम हमें समझ में आ गया। दूसरा हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड वाज व्हाट? द सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड वाज पैनक्रियास, ठीक है। सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड वाज व्हाट? पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का क्या काम होता है? पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास वुड बी सिक्रीटिंग, इट विल सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी? पैनक्रियाटिक जूस में हमारा प्रेजेंट रहेगा ट्रिप्सिन। एक ट्रिप्सिन प्रेजेंट रहेगा जो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो अभी तो आपने बोला था प्रोटीन का डाइजेशन तो पेप्सिन कर रहा था, स्टमक के अंदर पेप्सिन प्रेजेंट था, वो क्या कर रहा था? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। और अभी आप बोल रहे हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन कर रहा है। तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था किसके अंदर? स्टमक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था प्रोटीन का। प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहां पे अगर करेगा? विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। वन ऑफ द जूसेस और द सिक्रीशन इज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहेगा और हेल्प करेगा इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अपार्ट फ्रॉम पैनक्रियाटिक जूस, what else is present? Lipase enzyme is present. Apart from trypsin, what else is present in pancreatic juice? The second would be the lipase enzyme. Lipase enzyme का क्या काम होता है? लाइपेज नाम से ही समझ में आ रहा है, लिपिड का डाइजेशन करेगा। तो फैट का जो इमल्सिफिकेशन हुआ था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसने किया था? बाइल जूस ने किया था। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स ने किया था, जिसमें मेजर लाइक जो फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया था स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। अब ये स्मॉलर ड्रॉपलेट्स से भी फर्दर इनको छोटा पीसेस में बनाया जाता है, इनका फर्दर डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है? तीसरा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है दैट इज
पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तीसरा जो पैनक्रियाटिक जूस है इट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है, ये कैसे हेल्प करेगा? अमाइलेज से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, ये मेजरली ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा फर्दर शुगर मॉलिक्यूल को। सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज है तो क्या करेगा, शुगर मॉलिक्यूल को फर्दर कन्वर्ट करेगा इनटू स्मॉलर और लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज ग्लूकोज। सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। कार्ब्स आर बेसिकली द शुगर मॉलिक्यूल्स। सो हमें क्या क्या पता चल गया, we have studied about the associated organs, how associated organs are indirectly helping in the digestion of the food। ठीक है, इनके थ्रू खाना पास ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कहाँ पे जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं और वहाँ पे फर्दर हेल्प कर रहे हैं इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा लिवर के बारे में। लिवर से बेसिकली कौन सा सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है। इस बाइल जूस का जो स्टोरेज हो रहा था इट इज टेकिंग प्लेस विद इन द गॉल ब्लैडर, अनदर ऑर्गन विद इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। देन कम्स द सेकंड associated gland which helps in which indirectly helps in the digestion of the food is the pancreatic gland। okay, so pancreatic gland में pancreatic juice secrete होता है through the pancreatic gland present within the pancreas। तो pancreatic gland क्या करेगा, pancreatic juice का secretion करेगा, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। सबसे पहला इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस चीज में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। Lipase is helping in the digestion of fat, while the pancreatic amylase is helping in the digestion of carbohydrates। So यहाँ पे क्या हो रहा है, इन secretions के through digestion, further digestion of the food is being taking place। Next coming to the small intestine, ये सारी चीजें small intestine में हो रही है और small intestine में जो associated glands है वो अपने secretions भेज के small intestine में क्या होता है, complete digestion and absorption of the food takes place। Small intestine में basically intestinal juices present रहती है। intestinal juices जो कहां से, intestinal glands से secrete होती है। ये intestinal juices क्या करती है, further helps in complete digestion and absorption of food। So complete digestion and absorption of food takes place within what, within the small intestine। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जा रहा है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम कहाँ पे पहुंच गए, खाना हमारा कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक से पास ऑन हो गया टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस होती है जो कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का टेक प्लेस होता है विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को अकर करने के लिए भी कौन हेल्प करता है, एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हेल्प करती है। इतना हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन, क्या डिफरेंस है, नाम ऐसा क्यों पड़ा हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग होता है, अराउंड लाइक 6 to 7 मीटर लॉन्ग रहता है, लंबाई इसकी बहुत है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है उससे ज्यादा लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टिल इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब होती है इट इज हैविंग स्मॉलर डायमीटर। डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर इज स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का अगर मैं बोलूं तो इसका डायमीटर ज्यादा बड़ा होता है, इसका डायमीटर बड़ा है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, मेजर डिफरेंस पता चल गया हमें। अब क्या करेंगे हम लोग, अब खाना कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट अब्जॉर्प्शन डाइजेशन ऑफ द फूड हैज टेकन प्लेस। ठीक है, अब ये अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन भी कैसे हो रहा है, डाइजेशन तो मैंने बता दिया, कंप्लीट डाइजेशन तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंटेस्टाइनल जूसेस की हेल्प से और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की हेल्प से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इज टेकिंग प्लेस। बट अब्जॉर्प्शन की अगर ये जो बात आ रही है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्ब कैसे हो रहा है फूड, अब्जॉर्ब तो बेसिकली ब्लड में होना चाहिए, तो ब्लड में कैसे खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में से। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या प्रेजेंट रहते हैं, also consists of, it also consists of finger like projection, finger like projections present रहते हैं इनमें। इन finger like projections को क्या बोला जाता है, विलाई और माइक्रो विलाई बोलते हैं इनको। ठीक है, ये माइक्रो विलाई किस चीज में हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है उसके अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प कर रहा है, दीज माइक्रो विलाई। अब ये कैसे हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, सरफेस एरिया बढ़ा देती है अपना, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता है जिसके कारण क्या होगा, सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। एंड विद इन दिस विलाई व्हाट इज प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। सो सपोज ये हमारा, सपोज क्या कर रहे हैं हम लोग,
ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से प्रेजेंट है। ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको क्या बोला जा रहा है, जिनको बोला जा रहा है माइक्रोविलाई। दीज आर व्हाट, माइक्रोविलाई। इन माइक्रोविलाई के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सर्टेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स इस तरह से प्रेजेंट रहती हैं। सो ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो भी खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना जा रहा है, यहाँ पे ये जो खाना है फूड मटेरियल, दिस फूड मटेरियल वुड बी अब्सॉर्ब्ड थ्रू दिस विलाई, ठीक है। विलाई के थ्रू अंदर जाएंगे, अब्सॉर्ब होंगे थ्रू द ब्लड, और ब्लड क्या करेगा, ब्लड इसको भेज देगा टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, दिस इज बेसिकली आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, जो खाना है उसको ब्लड वेसल्स जो विलाई के अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। तो खाना यहाँ पे, फूड आइटम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू दिस खाना इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया हमारा यहाँ पे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कराने के बाद अब ये खाना कहाँ पे जाएगा, अब फर्दर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मेजरली जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस होता है वो कहाँ पे अकर करता है, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम लोग आते हैं रेक्टम में। अब ये जो रेक्टम है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम, और वहां पे क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए द फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड, the undigested food which need to be released out of the body, the undigested food is stored for short duration, ठीक है। कुछ समय के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में स्टोर किया जाता है, और फर्दर रेक्टम के थ्रू क्या होगा, फर्दर द ओपनिंग प्रेजेंट दैट इज द एनस, इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग रिलीज्ड आउट। सो वी हैव स्टडीड, मतलब स्टेप वाइज हमने ये देख लिया है कि कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट में खाना जा रहा है, किस तरह से वहां पे डाइजेशन हो रहा है खाने का, और किस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड इज बीइंग रिमूव्ड आउट। सो अब हम लोग इस डायग्राम में आ जाते हैं, जो यहाँ पे पिक्चर बना के रखी हुई है, सेम चीज ही है जो मैंने अभी बताया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्दर इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। The digestive system, human digestive system is being divided into two parts. One is the alimentary canal, which is the hollow canal, okay, which is 7 to 9 meters long. और इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। स्टार्टिंग बिगिनिंग वाली ओपनिंग को माउथ बोला जाता है, और जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिलीज आउट होता है दैट इज नोन एज एनस। सो स्टार्टिंग कहां से हुआ, खाना कहां पे गया, हमारा इंजेक्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद इन द माउथ। अब माउथ के हमने क्या पढ़े थे, तीन मेजर पार्ट पढ़े थे, टीथ होता है, टंग होता है, और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं टीथ से। तो टीथ में क्या होता है, क्रशिंग एंड the food is being cut into smaller pieces. So सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे अगर करता है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो बिग पीसेस होते हैं फूड के, उनको स्मॉलर पीसेस में क्रश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, मैस्टिकेशन बोला जाएगा। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। इसके बाद क्या करेगा, टंग। टंग में क्या होते हैं, टंग बेसिकली हेल्प करता है टेस्ट करने में। कोई भी फूड आइटम हमने खाया है, टंग में हमारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं, और टेस्ट बड्स के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। एंड दीस रिसेप्टर्स मेजरली हेल्प्स इन सेंसिंग द टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। इसके अलावा टंग का क्या काम होता है, स्वॉलोइंग ऑफ फूड में भी टंग हेल्प करता है। टंग के बाद हमारा क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सिक्रीशन होता है किसका, सलाइवा का, और इस सलाइवा के अंदर क्या होता है, केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोला जाता है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, दिस सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू अ सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज माल्टोज। किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अबाउट द सलाइवरी अमाइलेज। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज maltose with the help of salivary amylase which is present in the saliva. salivary amylase की हेल्प से होता है ये, ठीक है। अब स्टार्च क्या है और माल्टोज क्या है। स्टार्च तो मैंने अभी बोला कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और किसका बना हुआ है, स्टार्च किसका बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से मिलके स्टार्च बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे बना हुआ है स्टार्च की अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। स्टार्च इज बेसिकली चेन ऑफ ग्लूकोज। अब इसको ग्लूकोज की चेन तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, इसको स्टार्च बोलेंगे। स्टार्च का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। तो होता क्या है, छोटे छोटे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा सा स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। ये सब जुड़ के क्या बनाएंगे, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाएंगे।
अब ये स्टार्च का जो मॉलिक्यूल है जो खाने के साथ आ रहा है बॉडी के अंदर, इसको क्या करना है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका सिंपलर फॉर्म क्या होगा, स्टार्च को तोड़ दिया जाएगा, इस तरह से स्टार्च को तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सा केमिकल, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और ये सलाइवरी अमाइलेज कहां प्रेजेंट है, विद इन द सलाइवा। तो इसको तोड़ के क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा इनटू द माल्टोज। माल्टोज इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बना है, क्योंकि यहीं से टूट रहा है ना, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, ये दो अलग, ये दो अलग, इस तरह से तोड़ा जाता है स्टार्च इनटू द माल्टोज विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इतना समझ में आ गया। फिर हमारा क्या है, खाना कहां पे जाएगा, माउथ से कहां पे जाएगा, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। और ओएसोफेगस की जो मसल्स होती है ना, मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके खाने को पुश करती है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप पुशेस द फूड इनटू द स्टमक। ओएसोफेगस से खाना पुश होने के बाद कहां पे जाएगा, it will go to the small intestine, sorry small intestine, not in small intestine, it will first go to the stomach. So first is the teeth, second हमने क्या पढ़ लिया, salivary glands, third is oesophagus, fourth is हमारा stomach। तो stomach में चला गया। stomach में क्या होता है, stomach में further digestion of the food takes place। stomach की जो wall होती है वो उसमें भी contraction relaxation होता है, और वो mix करता है food item को with the gastric juices, जो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, gastric glands। तो जो स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, किसका, गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें होती है, कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, इसके अलावा क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा ताकि वो क्या कर सके, प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। सो आफ्टर द फूड हैज बीन डाइजेस्टेड within the stomach, the food will now move to the small intestine. Small intestine is a coiled part or the organ of the digestive system. It is the longest part of alimentary canal. So सबसे लंबा पार्ट जो alimentary canal का वो कौन है, वो small intestine है। इसकी लेंथ अराउंड 6 meters लॉन्ग होता है, 6 to like 7 meters long, and it is the site for the complete digestion of the carbohydrate, proteins and fats. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पे अकर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन अकर कर रहा है, कंप्लीट डाइजेशन, उसमें और कौन कौन से ग्लैंड्स हेल्प करते हैं, दीज आर बेसिकली द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हमारा एक तो लिवर आ जाएगा, दूसरा वुड बी द पैनक्रियास। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है और कंप्लीट अब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, उसके लिए associated organs also help. They don't directly help in the digestion, they just secrete certain chemicals which are being released into the small intestine, and the food present within the small intestine is being digested. तो लिवर का काम क्या होता है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। जैसा कि हमने पहले देखा, लिवर क्या सिक्रीट कर रहा था, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा था। बाइल जूस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स, और ये बाइल सॉल्ट्स क्या करती है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं किसका, फैट के जो बिग globular molecules होते हैं, it is being converted into smaller droplets, and this process is known as emulsification of fat, right? Then apart from that, bile juice का और क्या काम होता है, bile juice जो भी स्टमक से alkaline food आ रहा था उस फूड को कन्वर्ट करेगा इनटू द एसिडिक फूड जो आ रहा था, क्योंकि स्टमक का जो पीएच था वो वेरी लो पीएच, इट इज द एसिडिक पीएच बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ HCl। तो HCl की प्रेजेंस की वजह से, HCl के सिक्रीशन की वजह से स्टमक का पीएच वाज वेरी लो, एसिडिक पीएच, और फूड उसके साथ मिक्स होके द फूड हैड आल्सो बिकम एसिडिक। अब ये जो फूड है इसको अल्कलाइन फूड में कौन कन्वर्ट करता है, बाइल जूस कन्वर्ट करता है, एंड दिस अल्कलाइन फूड इज फर्दर सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दो मेजर फंक्शन है किसके, लिवर के थ्रू जो सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, उसके दो मेजर फंक्शन है। पहला तो वो क्या करेगा, जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, मतलब बिग ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स। दिस इज द वर्क ऑफ लिवर। अब जो बाइल जूस होता है, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द लिवर, बट इट इज स्टोर्ड वेयर, इन अनदर पार्ट ऑफ द digestive system, which is gall bladder. So liver we have completed. liver के बाद जो दूसरा हमारा the second associated organ which helps in indirect digestion of the food is pancreas. So pancreas secrete pancreatic juice. Pancreas have pancreatic glands which secrete pancreatic juice.
These pancreatic juice consists of trypsin, which helps in the digestion of protein. So the protein was already digested within the stomach with the help of protease enzyme, with the help of, in case of stomach, with the help of pepsin. The pepsin helped in the digestion of protein. But the complete digestion of protein takes place within the small intestine with the help of pancreatic juice released within the small intestine known as trypsin. Apart from trypsin, the pancreatic juice consists of lipase enzyme, which helps in the further breaking down of the emulsified fat. The fat was being emulsified with the help of the bile juice secreted from the liver. इस फैट का फर्दर जो इमल्सिफाइड फैट है उसका फर्दर डाइजेशन किसके थ्रू होगा? लाइपेज एंजाइम के थ्रू होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइपेज एंजाइम, पैनक्रियाटिक gland, it also secretes what? Pancreatic amylase. So another major secretion of the pancreatic juice is the pancreatic amylase. What is the role of this pancreatic amylase? It basically helps in the digestion of complete the digestion of the carbohydrate. Helps in complete digestion of starch. बेसिकली स्टार्च का आधा डाइजेशन तो हमारा कहाँ पे हो गया था? माउथ में हो गया था. विद द हेल्प ऑफ द salivary gland secreted the salivary amylase. It secreted the saliva, and in that saliva there was a enzyme present known as salivary amylase, which helped in breakdown of the starch into maltose. So further the starch is being completely digested with the help of pancreatic amylase secreted by the pancreatic gland. It is present within the pancreatic juice which is being secreted by pancreatic gland, and pancreatic amylase क्या करता है? स्टार्च को complete digestion करने में help करता है. तो सारे ही बायोमोलिक्यूल्स का complete digestion majorly takes place within the small intestine. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे जो हैं इनका complete digestion कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अपार्ट फ्रॉम द पैनक्रियाटिक जूस एंड द लिवर विच इज सिक्रेटिंग बाइल जूस, उनकी वजह से जो डाइजेशन हो रहा है उसके अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के सिक्रीशन नोन एज इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस. दीज सिक्रीशंस बेसिकली हेल्प्स इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड आइटम्स. फूड आइटम्स में क्या क्या आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, जो कार्ब्स होती है उनका कंप्लीट डाइजेशन होता है एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रिएंट दैट इज ग्लूकोज. ये ग्लूकोज बनाती है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल और न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल. प्रोटीन्स किसमें टूटेंगे? प्रोटीन्स वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, व्हाइल फैट्स दे अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस ग्लिसरॉल एंड glycerol plus fatty acids. Glycerol plus fatty acids. So these are the nutrients which are being produced after complete digestion of the food item within the small intestine. Apart from the complete digestion of the food, there is the complete absorption of the food which takes place within the small intestine. So small intestine में क्या present रहते हैं? Lots of finger-like projections known as microvilli are present. ये माइक्रोविलाई में बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? दीज आर द माइक्रोविलाइज. इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है. ब्लड का सप्लाई होता है यहाँ पे. तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या कर लेंगी? जितना भी न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इन सबको अब्सॉर्ब करके क्या करेगी? सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज कर देगी न्यूट्रिएंट्स को, और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के थ्रू ये सारा न्यूट्रिएंट जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. So here, hence the digested food is being absorbed and taken to all the cells of the body. ये किसके थ्रू हो रहा है? माइक्रोविलाई के थ्रू होता है. उनके अंदर there are various blood vessels present. So this is completed. Small intestine में complete absorption and digestion of the food has taken place. Coming to the large intestine. अब large intestine में क्या होता है? खाने का तो complete digestion and absorption हो गया है. Large intestine में क्या होगा? जो अनअब्सॉर्ब्ड फूड है उसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा? जितना भी फूड जो अब्सॉर्ब नहीं हो पाया है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन और द विलाई प्रेजेंट विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट वुड बी सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में उसको भेज दिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? उस अनअब्सॉर्ब्ड फूड में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को या मटेरियल्स को अब्सॉर्ब कर लेगा. ठीक है,
वाटर को उससे रीअब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। एंड फर्दर दिस अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द वाटर और अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, दिस इज बीइंग एक्सक्रीटेड और इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी as a in form of waste material. So exit of waste material via anus is regulated by anal sphincter. अभी ये anal sphincter क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को तो हमें समझ में आ गया, क्या हो गया, जो भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड है उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब करके उस अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड को क्या होता है फर्दर कहाँ पे भेज दिया जाता है, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इट इज बीइंग सेंट टू द रेक्टम. रेक्टम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ, रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम. और रेक्टम में भेजने के बाद रेक्टम में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जिसको क्या बोला जाता है, एनस स्फिंक्टर बोला जाता है. एनस स्फिंक्टर बेसिकली एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर, दो टाइप के स्फिंक्टर प्रेजेंट रहते हैं इसमें, जिसके थ्रू क्या होता है, द फीकल मैटर, द अनडाइजेस्टेड फूड आइटम इज बीइंग रिलीज्ड आउट और डेफिकेटेड आउट ऑफ द एनस. सो एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट इज बीइंग रिमूव्ड आउट. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, जो प्रोटीन है उनको तोड़ा गया है, कंप्लीट अब डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, किसमें, अमीनो एसिड में. कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन हुआ है इनटू ग्लूकोज, फैट्स का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया. हमने क्या कवर अप कर लिया, न्यूट्रिशन विद इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. एलिमेंट्री कनाल जो कि लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माउथ टू द एनस. ठीक है, इतनी चीज हमने पढ़ ली है. नेक्स्ट कमिंग टू द, yes, one more topic is left here. Difference between the small intestine of a carnivore animal and a herbivore animal. Herbivore basically क्या है, herbivore कौन होते हैं, जो घास फूस खाने वाले, कैटल्स में मेजरली कम अंडर दीज. ठीक है, सो कैटल्स क्या करती हैं, कैटल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ herbivore animals. इनका जो फूड आइटम होता है, इट इज दे बेसिकली ईट द प्लांट बेस्ड डाइट. प्लांट बेस्ड डाइट होता है इनका. ठीक है, जबकि कार्निवोर एनिमल्स की बात करें तो दीज आर बेसिकली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मोस्टली लायन, टाइगर, ऑल दीज एनिमल्स कम अंडर कार्निवोर्स. So here it is. Now we can see from the picture that there is a difference between the small intestine of carnivores and herbivores. Carnivores का जो small intestine it is much more shorter as compared to the herbivore का small intestine. Herbivore का small intestine यहाँ से start हो रहा है, यहाँ से start होगा, ये पूरा small intestine ही है. ठीक है, जबकि small intestine carnivores का थोड़ा छोटा होता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर का लंबा क्यों है और कार्निवोर्स का छोटा क्यों है. ये इसलिए होता है क्योंकि हर्बीवोर का, पहला तो मैंने ये बताया था कि इनकी जो फूड होता है, जो न्यूट्रिशन ये लेते हैं, इट इज बेसिकली द प्लांट बेस्ड डाइट. सो प्लांट में होता क्या है, द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सो प्लांट की जो सेल होती है, सेल ऑफ प्लांट, it consists of, cell wall of plant basically consists of cellulose, and cellulose is a compound or it is a polysaccharide which is very hard to digest. इसको डाइजेशन करने में बहुत ही टाइम लगता है. ठीक है, सो इनका जो फूड आइटम है प्लांट बेस्ड है. प्लांट में जो सेल होती है, सेल वॉल जो होती है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, पॉलीसैकेराइड, और इसको डाइजेस्ट करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है. इसीलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है एज कम्पेयर टू, ज्यादा टाइम लगता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में. जबकि इनका जो होता है कार्निवोर्स का, वो कैसा होता है, छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बिकॉज इनको क्या खाना होता है, इनको फ्लैश खाना पड़ता है और उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो इजिली डाइजेस्टेबल है. देयरफॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन दिस केस. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर्बीवोर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ cellulose, while carnivores के केस में क्या लिखा हुआ है, smaller small intestine as it is easy to digest the meat or the flesh that they are dependent on, or their diet is basically meat. Coming to the experiment, third experiment that we are covering in this particular chapter is this particular experiment, which is based on the starch present within the mouth. So starch का जो digestion होता है
कैसे अगर करता है माउथ के अंदर, जो स्टार्च हम लोग फूड आइटम खा रहे हैं उसमें स्टार्च तो प्रेजेंट रहेगा, उस स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, उस स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है थ्रू द सलाइवा। तो हमने क्या किया है, दो टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं, एक टेस्ट ट्यूब ए है, दूसरा टेस्ट ट्यूब बी है। इसमें हमने क्या रखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आयोडीन सोल्यूशन दोनों में, सॉरी सलाइवा का सोल्यूशन लेके रखा हुआ है यहाँ पे, सलाइवा इज ऑलरेडी हियर, ओके। तो सो व्हाट वी हैव टेकन हियर, स्टार्च प्लस सलाइवा। इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या लेके रखा हुआ है, स्टार्च लेके रखा हुआ है प्लस द सलाइवा, द सोल्यूशन इज हियर, व्हाइल इस वाले टेस्ट ट्यूब में सिर्फ स्टार्च लेके रखा हुआ है। अब होगा क्या, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जिसमें जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें स्टार्च और सलाइवा रखा हुआ है उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, आयोडीन का ड्रॉप डाल रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग बी वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें स्टार्च सोल्यूशन सिर्फ प्रेजेंट है उसमें भी आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं। जब हम लोग दोनों में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमें क्या देखने को मिलेगा, कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जबकि दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमें क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टार्च जब रिएक्ट करता है किसके साथ, आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा कलर देता है, ब्लैक ब्लू कलर, ब्लैक ब्लू कलर देता है। तो यहाँ पे हमें ब्लैक ब्लू कलर चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च while in case of test tube A there is no color change। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्च प्लस सलाइवा का सोल्यूशन लेके रखा हुआ है। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, अभी अभी हमने डाइजेस्टिव प्रोसेस में डिस्कस किया था। इन ह्यूमंस के केस में जो माउथ होता है उसके अंदर सलाइवा जो प्रेजेंट रहता है, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। इट इज अ काइंड ऑफ एंजाइम और द केमिकल विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, स्टार्च को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा इनटू व्हाट, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल दैट इज माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो स्टार्च जब इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया, टूट गया इनटू माल्टोज, तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कोई कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो पहला वाले टेस्ट ट्यूब में कोई कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमें ब्लैक ब्लू कलर देखने को मिलेगा। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि सलाइवा कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च। व्हाई सलाइवा कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। अभी जितना भी हमने डिस्कशन किया इस पर्टिकुलर लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड यू पीपल आल्सो टेस्ट योरसेल्फ हाउ मच यू हैव ग्रैब्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन का पार्ट ए है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ आवर माउथ कैविटी। सो हमारी माउथ कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज द सलाइवा। किसकी बात हो रही है, फ्लूइड जो प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लूइड क्या है, सलाइवा, सलाइवा की बात हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। तो सलाइवा में अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सलाइवा के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट रहता है, एंजाइम प्रेजेंट रहता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। Which gland produces it? सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, इट इज सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। काम क्या है सलाइवरी अमाइलेज का, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, सलाइवरी अमाइलेज का होता है। देन कम्स एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड विथ द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। सो जो एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की थी वो क्या था, एक्टिविटी में हमने क्या किया था, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए थे, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। तो यहाँ पे क्या था, इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा था, स्टार्च रखा था प्लस सलाइवा, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ स्टार्च सोल्यूशन प्रेजेंट था। दोनों में हमने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन डाला, यहाँ पर भी हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, ठीक है। तो सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा स्टार्च को इनटू माल्टोज, जिसकी वजह से स्टार्च ना प्रेजेंट होने की जगह वजह से देयर विल बी नो कलर फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई कलर फॉर्मेशन हमें नहीं दिखेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस कोई सलाइवा हमने नहीं डाला है, सलाइवा में ही सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, स्टार्च अपने
इंटैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसके साथ आयोडीन रिएक्ट करेगा और ये क्या देगा, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देगा। पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट का क्या मतलब है, इट विल शो ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमने समझा दिया व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय अमीबा, एक्सप्लेन हाउ फूड इज बीइंग टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। तो कैसे हमने एक्सप्लेन किया था, अमीबा इज अ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके केस में हमने कैसे पढ़ा था, ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, अमीबा शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, द एंटायर फूड इज बीइंग इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट विद इन द अमीबा व्हिच इज नोन एज सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करेगा, पूरा फूड को इंजेस्ट करेगा इनसाइड द बॉडी। फूड वैक्यूल के अंदर फूड जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फर्दर दिस डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग रिलीज्ड आउट इनटू द साइटोप्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो अब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू सिंपल डिफ्यूजन एंड दिस अब्जॉर्ब्ड फूड इज फर्दर यूटिलाइज्ड बाय द amoebic cell to produce energy. This is known as assimilation and at last the undigested food is being removed out of the cell surface with the help of step known as egestion. So this is the entire mechanism through which the amoeba takes nutrition. तो ये हमारा कवर अप हो गया था, यहाँ पे हमने इसको देख चुका है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देके रखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl का क्या रोल होता है, क्या करता है HCl, इट बेसिकली मेंटेन्स एसिडिक pH। कहां पे, एसिडिक pH विद इन द स्टमक। स्टमक के अंदर एसिडिक pH मेंटेन करता है और ये pH कितना होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 1.3 टू 3.5 pH रेंज होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, एक्टिवेट्स पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, HCl क्या करता है, kills the pathogen present with the food। जो फूड के साथ जो पैथोजन आता है स्टमक के अंदर उसको क्या करेगा, किल करने का काम भी कौन करता है, HCl। तो HCl हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या है, विलाय। माइक्रोविलाय के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इट बेसिकली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया for absorption of food within the small intestine। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड absorption of the food अकर करता है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द विलाय एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द absorption of the food। एनल स्फिंक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एनल स्फिंक्टर का क्या काम होता है, एनल स्फिंक्टर इज अ मसल व्हिच हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड। इट इज referred here as a waste material which is being ejected out of the body with the help of a sphincter muscle known as the anal sphincter, ठीक है। लाइपेज की अगर मैं बात करूं, लाइपेज इज अनदर काइंड ऑफ enzyme which is being secreted by which gland, it is being secreted by pancreatic gland। so जो pancreas होती है उनके अंदर pancreatic gland होती है, वो रिलीज करती है pancreatic juice। उसमें one of the content of the pancreatic juice is lipase। इसका काम क्या होता है, it basically helps in the digestion of the emulsified fat। तो लाइपेज क्या करता है, emulsified fat का फर्दर डाइजेशन करने में हेल्प करता है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस इज अ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक
juices, जो gastric juices gastric gland से release होती है, which is majorly present in the inner wall of the stomach. Mucus क्या करता है? जो mucus का secretion होता है वो protect करता है the inner lining of the stomach. किससे? जो HCl रिलीज होके रखा हुआ है स्टमक के अंदर, जो HCl रिलीज हुआ है उससे इनर वॉल ऑफ द स्टमक इट डजंट गेट डैमेज, उसके लिए म्यूकस उसकी इनर वॉल को कवर अप करके रखता है. बाइल जूस, बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस इज अ सिक्रीशन जो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? फ्रॉम लिवर. तो लिवर सिंथेसाइज करता है बाइल जूस को और इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं. जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं या ग्लोबुलर मॉलिक्यूल होते हैं फैट का, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन इज अनदर सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक ग्लैंड. और ट्रिप्सिन किसमें हेल्प करता है? इट बेसिकली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. जो प्रोटीन डाइजेस्टेड होके रखा हुआ है ऑलरेडी फ्रॉम द स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम वाज रिस्पॉन्सिबल. तो उस प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, which is being released as a pancreatic juice from the pancreas. ठीक है. How is the absorption of digested food carried out in the small intestine? अब small intestine के अंदर absorption of digested food कैसे होता है? ये हमने किसके थ्रू पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था किसके थ्रू? एक हमने डायग्राम बनाया था. किसका? माइक्रोविलाई का डायग्राम बनाया था. तो हमने क्या पढ़ा था? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं. इनमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है. तो जो भी खाना आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आ रहा है इट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट चला जाएगा और क्या होगा? ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स के थ्रू चला जाएगा इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में वंस द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन रिलीज्ड, the circulatory system में the major connective tissue that is the blood, it will help in the transport of these nutrients to each and every cell of the body. जो पूरे cells जो body में present है उनके पास जब nutrients चला जाएगा तो nutrients को break down करके उससे ATP energy release करते हैं cells, और जब energy release होती है तो cell अपनी activity perform कर सकता है. So this is the importance of complete absorption of food with the help of microvilli present within the small intestine. Coming to the next question. Next question हमारा क्या है? Why is the small intestine longer in herbivores than the carnivores? तो हमने क्या पढ़ा था? herbivores किस टाइप का डाइट लेते हैं? इनका जो डाइट होता है वो प्लांट बेस्ड डाइट होता है. तो प्लांट में जो सेल होती है, सेल की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंजाइम. और सेल्यूलोज एंजाइम कैसा होता है? सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड. सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड कैसा होता है? इट इज अ वेरी hard molecule. It is made up of very hard molecule and it is very hard to digest the cellulose compound. तो ये cellulose compound को इतना मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना कि इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोर्स की वो कैसी बना दी है? लंबी बना दी है ताकि ज्यादा इजिली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके. जबकि इन केस ऑफ कार्निवोर्स सिंस इनका जो डाइट होता है इट इज मीट बेस्ड और द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये. सो फ्लैश को ब्रेक डाउन करने में या कंप्लीट डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए इनका जो इंटेस्टाइन होता है इट इज स्मॉलर इन लेंथ एज कंपेयर टू द हर्बीवोर्स. ठीक है. सो द लेक्चर नंबर 2 is being completed here. We have discussed all the concepts related to the nutrition in eukaryotic unicellular organisms, amoeba and paramecium. Apart from that, we have also studied the human digestive system. So here we have come to the end of the lecture 2. Now stay tuned for lecture 3 in which we will be covering about the respiration. What is the difference between respiration and breathing, respiratory system in human beings, and how the respiration takes place within the aquatic organisms. Thank you very much.